নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ৰ চোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ঘৰত বহি মাহেকত 60-70 হাজাৰ পৰা 1 লাখ টকালৈকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। কাৰণ সকলোৱে আজিকালি এটা ব্যৱসায় কৰিম বুলি বিচাৰি থাকে, কিন্তু কি ব্যৱসায় কৰিব সকলোৰ মনত কনফিউজনত থাকে যে মই কি ব্যৱসায় কৰিম কনফিউজনত থাকে। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ ডিছপাত, যিটো ডিছপ'জেবল পাত হয় আৰু সকলোৱে ঘৰত ব্যৱহাৰ বিয়া সভা সকাম এভৰিথিং কামত যিটো বস্তু ব্যৱহাৰ হয়। অসমত এটা বহুতে প্ৰচলিত বস্তু হ'ল ডিছপাত, প্লাষ্টিকৰ যি ডিছপাত থাকে আৰু ডিছ বাতিবিলাক যি থাকে এনেকুৱা বনোৱা মেচিনৰ বিষয়ে। এই মেচিনটো আপুনি যদি আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত লৈ গৈ পেলাই যদি এটা ব্যৱসায় কৰে একদম বহুতে আপোনাৰ লাভ হ'ব। আৰু এই মেচিনটো একদম মিনিমাম এটা কম বাজেটত, মিনিমাম কম ৰেঞ্জত আপুনি এই মেচিনটো আপোনালোকে পাব। মই আজি আপোনালোকক মোৰ পিছফালে দেখিব পাৰিছে, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিছপাত যি বনায়, এই ডিছপাত বনোৱা মেচিন। এই মেচিনটো কেনেকৈ তেওঁলোকে ডিছপাতসমূহ বনায় বা এই মেচিনটোৰ দ্বাৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে এই কামসমূহ কৰি আছে বা আপুনিও ব্যৱসায়ৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হ'ব পাৰিব, সকলো A to Z এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে আপুনি যদি এটা সৰুকৈ ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কম বাজেটত ল' প্ৰাইচত আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কৰিব পাৰিব। বেছি টকা আপুনি খৰচ কৰিব নালাগে। কাৰণ আজিকালি আপুনিও ভাবি থাকে যে এটা ব্যৱসায় কৰিব হ'লে মোৰ তাত মিনিমাম 2 লাখ 3 লাখ বা 5 লাখ টকালৈকে থাকিব লাগিব, কিন্তু আপুনি সেইটো কথা নহয়। মাত্ৰ 20-30 হাজাৰ টকা 10 হাজাৰ টকা এটা যদি থাকে আপুনি এই ব্যৱসায়ৰ লগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একদম জড়িত হ'ব পাৰিব। আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে কসমো পেপার ওয়ার্কস। শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে কসমো পেপার ওয়ার্কসের যে নতুন শাখা, সেখান থেকে পেপার প্লেটের মেশিন, আখের রসের মেশিন, পেপার কাপের মেশিন এগুলো পেতে পারেন। কসমো পেপার ওয়ার্কস বিগত 10 বছর ধরে पेपर प्लेटर मशीन काঁচা माल पेपर कापेर मशीन निये काज करছে। मशीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बिजनेस स्टार्टिंग करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग सोचते हैं हम लोग पेपर प्लेट का बिजनेस करेंगे, तब हम लोग सर्च करते हैं कौन सा मशीन लेने से अच्छा होगा। डाई सही है तो आप जो भी मशीन लेके काम करेंगे आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन पेपर प्लेट मशीन लेके काम करने में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक मशीन मत लीजिए। आप लोग जब सर्च करते हैं तो आप लोग को ऑटोमेटिक मशीन के बारे में पता चलता है, जो मशीन में रीला चलता है। कभी कभी आपको लगता है कि ऑटोमेटिक मशीन में माल ऑटोमेटिकली बनेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन लेबर नहीं लग रहा है। আপনারা ভাবেন অটোমেটিক মেশিনে প্রফিট বেশি হবে কারণ কায়িক পরিশ্রম কম, কিন্তু না দর্শক বন্ধুরা, অটোমেটিক মেশিনে কিন্তু আপনারা প্রফিট করতে পারবেন না। তার কারণ হচ্ছে সাইড ওয়েস্টেজ আর মিডল ওয়েস্টেজ হয়। साइड वेस्टेज और मिडिल वेस्टेज के लिए ऑटोमेटिक मशीन में प्रॉफिट नहीं मिलता है, इसलिए वो मशीन पहले मत लीजिए। जो लोग 6 इंच का 7 इंच का डोना बनाते हैं उन लोग को ऑटोमेटिक में रीला में प्रॉफिट आ जाता है, मिल जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो माल बनता है ना, 8 इंच का माल, 12 इंच का माल, 10 इंच का माल, आसाम में क्या होता है, आसाम में 13 इंच 14 इंच का माल भी चलता है। तो ये जो 13 इंच 14 इंच का माल, ये माल पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो कौन सा वाला मशीन लेना पड़ेगा पहले आपको मैनुअल मशीन लेना होगा, नहीं तो हाइड्रोलिक मशीन लेना होगा। ये देखिए, ये जो मशीन मेरे सामने है ये है पेपर प्लेट का मैनुअल मशीन। ये मशीन से ही पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट हुआ था। जब पहली बार कोई सोचा था कि पेपर प्लेट बिजनेस करेंगे, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो कैसा है, आप किस तरीका से बिजनेस करना चाहते हैं। मतलब आप फुल टाइम में पेपर प्लेट बिजनेस करना चाहते हैं कि पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, ये सोच के आपको मशीन खरीदना पड़ेगा। मैं एक सजेशन आपको देता हूं, अगर आपका बजट कम है, अगर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम है, आप पहले देखना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा है, कैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है तो पहले मैनुअल मशीन लेके आप काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैनुअल मशीन है ये है 5 नंबर मैनुअल मशीन, 5 नंबर मैनुअल मशीन। এটা এই মেশিনে 5 ইঞ্চি থেকে 12 ইঞ্চি অবধি কাজ করা যায়। আসামের অনেক জায়গায় কিন্তু 13 ইঞ্চি 14 ইঞ্চিও চলে। যারা 13 ইঞ্চি অবধি করতে চাইছেন তাদের জন্য 6 নম্বর ম্যানুয়াল মেশিন নিতে হবে। যারা 14 ইঞ্চি অবধি করতে চাইছেন তাদের জন্য 7 নম্বর। দেখুন, এই মেশিনটি উচ্চতায় বড়, ওজনে বেশি, এই মেশিনটি নিতে হবে। এই মেশিনটিতে 14 ইঞ্চি অবধি কাজ করা যায়, অর্থাৎ 5 ইঞ্চি থেকে 14 ইঞ্চি অবধি একদম কাজ আপনারা এই মেশিনে করতে পারবেন। আপনাদের একটা প্রশ্ন থাকে যে সেটা হচ্ছে র মেটেরিয়াল কিভাবে পাবেন। ये देखिए, ये होता है पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल, ठीक है। ऐसे कटिंग सर्कल में ही आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। आपको जो हम लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो ऐसे ही
साइज में एकदम सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, आपको सिर्फ मशीन में देना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा था ना मैनुअल मशीन का नंबरिंग, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मशीन का हाइट कितना है, मशीन का ओजन कितना है, और ये जो बेस है ना इसका एरिया कितना है। ये तीनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो मैनुअल मशीन का नंबरिंग क्या होता है। जो लोग असम से लेना चाहते हैं, मेरा सजेशन रहेगा आप लोग 7 नंबर नहीं तो 6 नंबर मैनुअल मशीन लीजिए, क्योंकि देखिए मेरा पूरा ईस्टर्न इंडिया में काम होता है। असम का तिनसुकिया में काम होता है, डिब्रूगढ़ में काम होता है, गुवाहाटी में काम होता है, लोअर असम, अपर असम, सब जगह में मेरा माल जाता है। तो मैंने देखा है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे 13 इंच 14 इंच का डिमांड आता है। तो अगर मैनुअल मशीन लेना है तो 6 नंबर नहीं तो 7 नंबर में आप जाइए। कभी कभी क्या होता है, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो आपको मैनुअल मशीन के बारे में जो रेट आपके सामने आता है वो कम बोलता है कंपनी, ठीक है, लेकिन जाने के बाद बोलता है कि वो मशीन में आपका 13 इंच 14 इंच नहीं बनेगा। कभी कभी ये भी बोलता है 12 इंच भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्या होता है जो 3 नंबर 4 नंबर का मैनुअल मशीन होता है ना उसमें 6 इंच 7 इंच तक बनता है। तो ये कम रेट सुन के मत भागिए, मत जाइए वहां पे, कम रेट শুনে যাবেন না, সঠিকটা জেনে যান। আপনি যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করুন এই মেশিনে আপনার এত ইঞ্চি অবধি বানানো যাবে কিনা, ডাই কত পড়ছে, जीएसटी কত পড়ছে, टोटल सब मिलिए जानून। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर हमसे आप मशीन लेंगे ना तो डाई, मशीन, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मिला के सबसे सस्ता मेरे पास ही मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग वीडियो में भी जो बताते हैं, व्हाट्सएप में, फोन कॉल में भी वो बताते हैं, जब हम आप लोग फैक्ट्री विजिट करते हैं तब भी वो बताते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है जहां से भी मशीन लेना है पहले फैक्ट्री विजिट कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि फोन के बात करके आप पैसा भेज दिया, ठीक है, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि जब एडवांस मिल जाएगा ना उसके बाद क्या करेगा, आपको बोलेगा जीएसटी लगेगा, वो लगेगा, तो ज्यादा पैसा खींच लेगा आपसे। फैक्ट्री ভিজিট করুন, কোনো অফিস দেখে গোডাউন দেখে কাজ করবেন না, ফ্যাক্টরি দেখে। এই যে আপনার উত্তরবঙ্গের শাখা দেখতে পাচ্ছেন, কত বড় শাখা, কত বড় ফ্যাক্টরি। আমাদের একটা সবসময় দায়িত্ব থাকে, রেসপন্সিবিলিটি থাকে, তাই জন্য আমরা চেষ্টা করি সঠিক জিনিসটা সঠিক দামে দেওয়ার। এই যে ম্যানুয়াল মেশিন, সেটা 7 নম্বর নিন বা 5 নম্বর নিন, এটা ডাবল কাস্টিং আয়রনের ম্যানুয়াল মেশিন, সিঙ্গেল কাস্টিং আয়রনের ম্যানুয়াল মেশিন নেবেন না। আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে অনেক সময় একটা প্রশ্ন লাগে যে मैनुअल मशीन की इलेक्ट्रिक लागे। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैनुअल मशीन में भी करंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। ऐसा नहीं है कि बिना बिजली ये मशीन चलेगा। क्यों बिजली लगता है? क्योंकि जो डाई है ना वो उसका हीट का ज़रूरत पड़ता है। वो हीट पाने से ही क्या होता है, आपका माल का जो डिज़ाइन होता है, माल का जो गेटअप होता है ना, वो सही तरीक़ा से माल बना पाते हैं मशीन। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली उसका ज़रूरत पड़ता है, लेकिन होम का जो करंट होता है, होम इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, घर का जो बिजली होता है, उससे ही आपका काम चल जाएगा। कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है आपका? पर आवर में 0.5 यूनिट होगा, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, बाकी मैनुअल मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे मैनुअल मशीन में माल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैं मेरा दोस्त राज को बुलाऊंगा मैनुअल मशीन में प्रोडक्शन करने के लिए। देखिए ये इतना आसान है कि कोई भी ये मशीन में काम कर पाएगा। मतलब ছেলে মেয়ে, কম বয়সী, বেশি বয়সী, যে কেউ এই মেশিনে माल बनाते পারবে। ये चक्का घुराने से क्या होता है, आपका चक्का घुमाने से ये जो डाई ये ऊपर ऐसे फिक्स्ड हो जाता है। आप अगर चक्का छोड़ देंगे तो फिर से वो नीचे आ जाएगा। और देखिए मशीन वो खुद का वेट से, खुद का जो वजन है उससे ही माल बना लेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से 10 सेकेंड टाइम देना पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर माल है। देखिए আমি যে কথাটা বারবার বলছিলাম, মেশিন যদি ঠিক হয়, ডাই যদি ঠিক হয়, তাহলে কিন্তু আপনার ম্যানুয়াল মেশিনেও हाइड्रोलिक মেশিনের মতোই माल তৈরি হবে, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलिक मशीन में माल बेहतर होगा। अगर आपका मशीन सही है, जो मैं नंबरिंग के बात में बोल रहा था, जो मैं ओजन के बात में बोल रहा था, वो अगर सही है ना तो आपका मैनुअल मशीन में जो माल बनेगा वो हाइड्रोलिक जैसा ही होगा। ये डाई के ऊपर डिपेंड करता है और मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। मैनुअल मशीन के बाद जो मशीन आता है वो होता है हाइड्रोलिक मशीन। ये जो हाइड्रोलिक मशीन है ये दो तरीका का होता है। एक होता है लीवर सिस्टम का हाइड्रोलिक मशीन और एक होता है आपका पैनल बॉक्स सिस्टम का हाइड्रोलिक मशीन। इसके फर्क क्या है, ये देखिए जो लीवर सिस्टम का हाइड्रोलिक मशीन है ना, इसमें एक लीवर से ऑपरेशन होता है। मतलब ये लीवर ही है ये मशीन का असली चीज। तो जब ये मशीन आप खरीदेंगे तो एक चीज आपको
ध्यान में रखना पड़ेगा कि लीवर बहुत सही होना चाहिए। ये लीवर अगर गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा मशीन आपका बैठ जाएगा। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा? देखिए, ये लीवर में ना एक सस्पेंशन होता है, এই লিভারে একটা সাসপেনশন হয়, এই লিভারটাকে প্রেস করলে একটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। जैसे गाड़ी चलाने के टाइम हम लोग का होता है ना, जो ब्रेक होता है, हम लोग जब ब्रेक प्रेस करते हैं तो एक सस्पेंशन, एक रेजिस्टेंस आता है, तो वो इंपॉर्टेंट है ये मशीन के लिए। हम लोग जो मोटर प्रोवाइड करते हैं, ये गोदरेज का होता है, नहीं तो क्रॉम्पटन का होता है, 2 HP का मोटर होता है। ये जो 2 HP का मोटर है, ये भी घर का बिजली में ही चलेगा और पर आवर आपका यूनिट कंजम्पशन होगा मान लीजिए 1.2 यूनिट के आसपास। ये जो सिंगल रे हाइड्रोलिक मशीन है, ये मशीन में आपका घंटे में 2000 तक माल बन जाएगा। अगर एकदम पतला माल जो होता है ना, जो जीएसएम के ऊपर डिपेंड करता है, जीएसएम मतलब माल कितना पतला है। अगर 70 जीएसएम है तो सबसे पतला माल होता है, 320 जीएसएम है तो मोटा माल बन जाता है। तो अगर आप पतला माल बनाएगा तो 70 जीएसएम का माल बनाएंगे तो मान लीजिए 2000 के आसपास माल बन जाएगा ये मशीन में। ये मशीन और ये मशीन का जो डिफरेंस है, ये पैनल बॉक्स सिस्टम का मशीन है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है। क्या होता है इसमें, अगर आप स्विच दबा देंगे तो सिलेंडर अप डाउन होगा, अगर ऑटोमेटिक टाइमर सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अप डाउन होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, ये मशीन के साथ एक पैडल, माउस जैसा चीज आप यूज कर सकते हैं। ये पैडल प्रेस करने से सिलेंडर अप डाउन कंट्रोल होता है। ये मशीन को 3-in-1 मशीन बोलता है। ये मशीन का सुविधा यही है, अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रॉब्लम में आ जाए तो बाकी जो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो রান करके आप মেশিন চালা পাएंगे। যাদের কাছে একটু বেশি টাকা আছে, যারা ভাবছেন সেটা হচ্ছে একটু বেশি ইনভেস্ট করে ব্যবসাটা করতে চাইছি, মার্কেটটা বড়ভাবে ধরতে চাইছি, বা আমরা চাইছি যে পার্ট টাইমে এই কাজটা করব, কম সময়ে বেশি মাল করব, তারা কিন্তু হাইড্রোলিক নিয়ে শুরু করতে পারেন। দেখুন, মেশিনের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে आफ्टर सेल सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मशीन का जो आफ्टर सेल सर्विस होता है। क्योंकि क्या होता है, मशीन तो आप एक बार खरीद लेंगे, उसके बाद अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो कौन वो सॉल्व करेगा? हम लोग जो कॉस्मो पेपर वर्क्स है, जो लास्ट 10 साल से काम कर रहे हैं पेपर प्लेट बिजनेस के ऊपर, पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल के ऊपर, ये मैं आपको वादा देता हूँ कि हम लोग पूरा सर्विस आपको प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन देखिए, इसका सर्विस चार्ज लगता है। ऐसे नहीं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। जब आप मशीन खरीद लेंगे तो उसके ऊपर 1 साल का वारंटी रहेगा। लेकिन क्या है ना, उसके जो आदमी जाएगा, आपका घर जाएगा, वो मशीन रिपेयर करने के लिए, उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। हम लोग जो बताते हैं ना, एकदम साफ साफ बता देता है पहले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मशीन खरीदने के बाद हम लोग अब हम मेरे पास आएंगे और हम और कुछ बताएंगे, ऐसा सही ही नहीं है। তাই জন্য সার্ভিস পাবেন, কিন্তু তার জন্য চার্জ দিতে হবে। আমাদের এখানে সমস্ত রকম কাঁচামাল পাবে। हर तरीका का जो रॉ मटेरियल होता है पेपर प्लेट का, वो मेरे पास आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज আছে, যেখানে যেখানে দেখা যায় যে ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা দেওয়া সম্ভব। বিভিন্ন যে ট্রান্সপোর্ট আছে, ভিআরএল লজিস্টিক হোক, ওম ট্রান্সপোর্ট হোক, যাদের মাধ্যমে মাল আপনাদের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে, তারা যদি সিওডি আপনাদের ক্ষেত্রে রাজি থাকে তখন আমরা অনেকটা দিতে পারি। আদারওয়াইজ আপনাকে পেমেন্ট করে মেশিন নিতে হবে। আপনার মাল আপনাকেই বিক্রি করতে হবে। आपका जो माल बनेगा ना, वो आपको ही सेल करना पड़ेगा, आपको खुद को मार्केटिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपका माल खरीद लेगा। जो भी कंपनी वीडियो करता है ना कि आप माल बनाइए, हम लोग माल खरीद लेंगे, तो आप उनको पूछिए कि वो खुद माल बना के क्यों नहीं सेल कर रहे। ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का एक्सपीरियंस के लिए हम लोग आपको नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए आप असम से आ रहा है, तो असम से जो लोग हमको फ़ोन कर रहा है, हम लोग का कंपनी में फ़ोन कर रहा है कि रेडी प्रोडक्ट लगेगा, तो वो जो नंबर है वो हम लोग लिस्ट करता है, तो वो नंबर हम लोग आपको दे सकते हैं। उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका बिजनेस स्टार्टअप एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। जितना टाइम आप देंगे उतना सक्सेसफुल होने का चांस है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ऐसे भी होगा आपका कि 2 दिन का माल सेल होगा, उसके बाद 3 दिन सेल नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी कभी ये भी आप देखेंगे कि वीडियो में बोलता है कि आपको ईएमआई फैसिलिटीज मिलेगा, वो मिलेगा। ये सब नहीं होता है। ये क्या करता है पता है, पहले आपसे एडवांस ले लेगा, एडवांस ले लेने के बाद आपको बोलेगा कि आपका बैंक स्टेटमेंट देने के लिए, उसके बाद आपको बताएगा कि आपको ईएमआई नहीं मिलेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मशीन मिलेगा। तो ये सब चक्कर में मत जाइए। आपका जो माल है आपको ही खरीदना, सेल करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, पूरा कैश देके ही मशीन आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है।
आइए, ये जो सिंगल डाई मशीन के बारे में मैं बोल रहा था, उसके बाद जो मशीन होता है ना, उसको बोलते हैं डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन। ये देखिए, ये जो है ये डबल डाई का एकदम एडवांस मॉडल है। बाकी देखिए यहाँ पे भी डबल डाई मशीन एक है, ये है बेसिक डबल डाई मॉडल। ये पैनल बॉक्स सिस्टम का ही है। जैसे मैं सिंगल डाई में बता रहा था कि एक सिलेंडर से काम होगा, इसमें 2 सिलेंडर में काम होगा। जब एक सिलेंडर डाउन होगा तो जो बाजू वाला सिलेंडर है वो अप होगा, ठीक है। ये मशीन में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसमें घंटे में आपको 4000 माल मिल जाएगा। ये भी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है। इसका प्राइस सिंगल डाई से 20,000 ज्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा निकल आता है ये मशीन से। तो जो लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले इन्वेस्ट करके एकदम सेटअप बनाएंगे, मेरे पास फंडिंग भी है, वो ये डबल डाई मशीन लेके काम कर सकते हैं। डबल डाई मशीन का बहुत सारे वैरायटी होता है। मैंने कॉस्मो पेपर वर्क्स में एक नया मशीन डेवलप किया है, जो मशीन में आपको बहुत सारे काम एक साथ हो जाएगा। क्योंकि क्या है, अभी तो डायनामिक बिजनेस चल रहा है। देखिए, ये जो मशीन है ना, ये मशीन है कॉस्मो पेपर वर्क्स का सुपर एडवांस मशीन। जो ट्राई कलर है इंडियन फ्लैग का, वो कलर से हम लोग ये मशीन डेवलप किया है। इसका पैनल बॉक्स जो है वो बहुत डेवलप्ड है। ये जो सिलेंडर है ये हेवी सिलेंडर है, नेशनल का सिलेंडर है। इसका जो मोटर है ये गोदरेज का 2 HP का ही मोटर है, लेकिन हेवी ड्यूटी का मोटर है, मतलब भारी मोटर है। ये भी घर का बिजली में ही चलेगा, आपको 1.7 यूनिट बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मशीन में आप डायनामिक काम कर सकते हैं। डायनामिक काम मतलब একসাথে অনেকগুলো ব্যবসা। যেমন এই মেশিনটায় আপনি চাইলে পেপার প্লেট করতে পারবেন, হাওয়াই চপ্পল করতে পারবেন, हाइड्रोलिक पैकेजिंग এর কাজ করতে পারবেন। ये मशीन में आप पेपर प्लेट बना पाएंगे, बाटी जो होता है या डाई मतलब डोना जो होता है वो बना पाएंगे 6 इंच का 7 इंच। उसके साथ जो हवाई चप्पल होता है ना, जो स्लीपर होता है, वो भी आप बना पाएंगे। ये देखिए स्लीपर है, ये भी आप बना पाएंगे। हाइड्रोलिक पैकेजिंग का काम भी होगा। ये मशीन का प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा है, इसमें आपका घंटा में 6000 माल बन जाता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोलिक ऑयल मशीन में लगता है टैंकी में, ये अगर आप 8 घंटा करके चलाएंगे मशीन, तो आपका 6.5 साल मशीन चलेगा, ये एक बार ऑयल मशीन में टैंकी में डालने के बाद। तो जो लोग चाहता है कि हम एकदम बेस्ट क्वालिटी मशीन लेकर काम करना चाहते हैं, इसके साथ डायनामिक बिजनेस करते चाहिए। क्यों डायनामिक बिजनेस? इसलिए डायनामिक बिजनेस क्योंकि अभी क्या होता है, जब मार्केट में कंपटीशन आ जाता है, अगर दिन का जो 8 घंटा टाइम होता है ना, वो अगर 2-3 बिजनेस में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमको बिजनेस करने में आसानी हो जाता है। मान लीजिए आप स्लीपर में 2 घंटे दिए, पेपर प्लेट में दिए 2 घंटे, हाइड्रोलिक पैकेजिंग में 2 घंटे दिए, तो ये जो कंपटीशन है वहां से आप बच पाएंगे। तो ये सोच के मैंने ये मशीन डेवलप किया था। ये मशीन भी आपको मिल जाएगा शिलीगुड़ी फुलबाड़ी में, कॉस्मो पेपर वर्क्स का जो ब्रांच है वहां पे आप आके देख सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे नहीं है कि फैक्ट्री विजिट करने में ही आपको मशीन लेना होगा। पहले आप विजिट कीजिए, मशीन देखिए, वहां पे चलाइए मशीन, बिजनेस के बारे में बात कीजिए। क्योंकि कोई भी नया जो बिजनेस होता है ना, वो सीखना पड़ता है। কোনো নতুন বিজনেস শিখতে হয়, না শিখে ব্যবসা করতে পারবেন না। আমরা চেষ্টা করি সেই ট্রেনিংটা প্রোভাইড করার। আগে কারখানা ভিজিট করে মেশিন দেখে মেশিন চালিয়ে তারপর মেশিন নিন। আসুন এই মেশিনটাই কিভাবে কাজ হয় সেটা আমরা দেখে নিই। দেখুন, এই মেশিনটা সুবিধা হচ্ছে, চাইলে আপনি এটাকে অটোমেটিক মোডে দিয়ে নিজে থেকে কাজ করতে পারবেন। দেখুন, বাঁ দিকের সিলিন্ডারটা যখন নামলো, তখন ডান দিকের সিলিন্ডারটা ওপরে আছে। এই ডান দিকের সিলিন্ডারটায় আপনি এবার পেপার প্লেটের কাঁচামালটা দিলেন, বাঁ দিকের সিলিন্ডারটা উঠে গেল। এদিকে হয়তো আপনি বাঁ দিকে তখন হাওয়াই চপ্পল তৈরি করতে পারেন, চাইলে পেপার প্লেটও তৈরি করতে পারেন। এবার দেখুন, ডান দিকের সিলিন্ডারটা আবার নিচে নামছে। এই ডান দিকের সিলিন্ডারে পেপার প্লেট তৈরি হচ্ছে। এই টাইমে আপনি আবার বাঁ দিকে হাওয়াই চপ্পল হোক বা পেপার প্লেট হোক তৈরি করতে পারবেন। ততক্ষণে দেখুন এই দিকে আপনার পেপার প্লেট তৈরি হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর মাল তৈরি হয়েছে। এবং এই মেশিনের সাথে সাথে আনুষঙ্গিক যে জিনিসগুলো লাগে, অর্থাৎ হাওয়াই চপ্পল তৈরি করার জন্য এই যে গ্রাইন্ডার পলিশার, স্ট্র্যাপ ফিটার, এই যে স্ট্র্যাপ ফিটার, ग्राइंडर पॉलिशर বা हवाई चप्पल कांचा माल, स्लीपर का जो रॉ मटेरियल होता है वो भी आपको मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये मशीन का जो एक एडवांटेज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप चाहते तो एक सिलेंडर ऑफ रख के जो बाजू वाला सिलेंडर है वो सिर्फ आप चला सकते हैं, ठीक है। মানে একটা সিলিন্ডার অফ রেখে চাইলে আপনি আরেকটা সিলিন্ডার চালাতে পারবেন এবং সেটা আপনি সুইচের মাধ্যমেই কন্ট্রোল করতে পারবেন।
जो लोग डायनामिक बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग के लिए ये मशीन सबसे बेहतर मशीन है। अगर चाहते हैं तो आप कॉस्मो पेपर वर्क्स का जो शिलीगुड़ी यूनिट है वहाँ आके ये मशीन देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये कॉस्मो पेपर वर्क्स में आपको पेपर प्लेट का हर तरीके का जो मशीन होता है वो मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, उसके साथ साथ बिजनेस का जो ट्रेनिंग है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर सर्विस जो होता है, कस्टमर सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। देखिए, हम लोग का जीएसटी सर्टिफाइड कंपनी है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटीज़ है ये भी हम लोग के ये कलकत्ता जो गोडाउन है वहाँ पे से भी अवेलेबल है और ये शिलीगुड़ी का फुलबाड़ी का जो गोडाउन है यहाँ से भी अवेलेबल है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, देखिए बिजनेस ही फ्यूचर है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले मेरा फैक्ट्री में आइए, विजिट कीजिए, मशीन देखिए, रॉ मटेरियल के बारे में हम लोग के साथ बात कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ से हम लोग मशीन लेना चाहते हैं तो लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये जो नॉर्थ बंगाल का हम लोग का यूनिट है कॉस्मो पेपर वर्क्स का, ये मैंने ओपन किया है क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, आसाम, त्रिपुरा, ये मेरा बहुत बहुत पसंद का जाएगा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा जो फैक्ट्री है उसमें विजिट करेंगे और हम लोग साथ में एक साथ हाथ में हाथ मिला के बिजनेस आगे बढ़कर लेकर जाएंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনা করে ভিডিওটি শেষ করছি। নমস্কার।